Hello guys and welcome back to my channel Ishi Archives, where I archive my life instances digitally and you guys become a part of it. So hi from just cuties as well. So I thought why not I should start a Thoughts on Tuesday video where I'll be sharing my thoughts on topics which might help you gain self-confidence and it can help you grow and know more about the world through my vision or my perspective. So guys, on today's Thoughts on Tuesday video, I'll be sharing how depending or relying on others can stop or hinder our self-growth. So I'll start with my transformation and then I'll explain each and every bit so that it would be easier for you guys to understand what I'm actually trying to share or trying to explain. Okay, so if मैं honestly कहूँ तो मैं अभी जैसे हूँ मैं पहले वैसे बिल्कुल नहीं थी. आई वॉज कम्प्लीटली अपोजिट. अभी मैं आपको बता देती हूँ कि हाउ आई वॉज डिफरेंट. राइट नाउ आई एम अ पर्सन who isn't asking for continuous validation, who isn't dependent on others कि मैं मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रहा है, मैं जाऊँगी मेरे आस पास के जो लोग हैं उनसे बोलूँगी कि यार ऐसा ऐसा हो रहा है, what should I do, and then वो जो बोलेंगे I'll go and I'll do that thing. नहीं, I'll think, I'll take time. If I'm into some situation or if I'm confused, I'm stuck up into something, I take time, I think, and then after I get a solution by myself, then I act or then I work on it. So this is the person I am right now. Earlier it was like if I am stuck into something or I'm confused in some area of my life, in some situation, I used to instantly go to my closed ones and I used to ask them that what should I do. I ask for validation, ask them that what should be done, and whatever suggestion they give me, I quickly used to follow that or do that. And at that point I didn't understand that is it correct और एम आई डूइंग राइट. क्लोज वन से इन जनरल मेरा मतलब ये है कि हमारे फ्रेंड्स हुए, फैमिली हुए, जिनसे हम जाके हमारा सॉल्यूशंस मांगते हैं, एश्योरेंस मांगते हैं, वैलिडेशन मांगते हैं. देयर इज़ नो रॉन्ग इन इट but there is not right in it too, according to me. Because if we are continuously asking for their validation, for their guidance, support, reassurance, or whatever the thing it is, if we are continuously asking from them, that means we are dependent on them. And if we are dependent on them, how can we become independent and how can we use our own brain to do something? क्योंकि इफ़ वी आर कंटिन्यूसली आस्किंग फॉर वैलिडेशन, फॉर हेल्प, फॉर रीअश्योरेंस और फॉर एनीथिंग, लाइक हम कोई भी चीज़ के लिए इफ़ हमारे आसपास के लोगों के पास जा रहे हैं तो हमें उस चीज़ की हैबिट पड़ जाती है. एंड इफ़ वी आर गेटिंग हैबिचुअल टू दैट, तो किसी दिन जब हमें खुद को वो चीज़ करनी होती है ना, तो इट बिकम्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू डू इट एक्चुअली. एंड देन ऐसा हो जाएगा ना कि हम क्या करते हैं, जब कोई चीज़ हमें कोई और कहता है कि हाँ हमें ये करना चाहिए, वी थिंक हाँ इसने बोला एंड देन वी डू. ओके, just giving an example, not everybody can be thinking that way, but just one side of this thing I'm sharing कि अगर हमको किसी ने कुछ करने बोला and we do it कि हाँ इन्होंने बोला ये सही ही होगा तो हम ये करते हैं. who knows that what they have suggested is actually right? नॉट नेसेसरी कि जिसने कोई चीज़ के लिए सही बोला तो वो एक्चुअल में सही है. इट कैन बी रॉन्ग फ्रॉम समबडी एल्सेज POV. सो वी कांट एक्चुअली कंसिडर इट राइट. बट ओके, अपार्ट फ्रॉम द राइट एंड रॉन्ग, जब हम किसी की सुन के करते हैं, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता कि हम उस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी लेते हैं. लाइक इफ़ कुछ गलत हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ, व्हाट विल से, अरे हमने इसके कहने पे वो चीज़ की, व्हाट विल डू, विल पुट द ब्लेम ऑन देम. बट वी शुड नो कि गलती हमारी है कि वी शुड नॉट आस्क देम, इट्स आवर प्रॉब्लम, इट्स आवर लाइफ, वाई वुड वी डिपेंड ऑन अदर्स. वी शुड थिंक ऑन आवर ओन सेल्स कि भाई अगर ये सिचुएशन आई है तो हमें क्या करना चाहिए. एंड वन मोर थिंग दैट आई फील इज़ कि हम भले इट एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम अ लिटिल. लाइक अगर आपको किसी प्रॉब्लम या किसी सिचुएशन में आप स्टकअप हो, यू विल आस्क फॉर गाइडेंस और वैलिडेशन इतने से चीज़ के लिए. एंड देन धीरे धीरे व्हेन यू गेट टू दैट, मतलब वो आदत जब पड़ जाती है ना, तो आप छोटी चीज़ों, बड़ी चीज़ों, हर चीज़ों, सबके लिए आप जाते हो वैलिडेशन लेने. एंड व्हेन यू गिव दैट की टू अदर्स खुद के हाथ से, तो उनको वो चीज़ का ना राइट मिल जाता है. लाइक दे विल कॉन्स्टेंटली पोक यू और कॉन्स्टेंटली से कि भाई मुझे लगता है कि तुझे ऐसे करना चाहिए, आई डोंट थिंक व्हाट यू आर डूइंग इज़ राइट. तो हम किसी और को वो एक वो दे देते हैं, हक दे देते हैं या राइट दे देते हैं कि हाँ भाई यू हैव गॉट द कंट्रोल ऑफ आवर लाइफ, नाउ यू कैन ऑल द टाइम पोक. आई डोंट थिंक पोक इज़ अ राइट वर्ड, बट आप कंटिन्यूसली हमको ये बोल सकते हो कि नहीं नहीं ऐसे नहीं करना, इसको ऐसे करना है, ऐसा नहीं वैसा नहीं करना, वैसा करना है. एंड देन क्योंकि
हमने कभी खुद को मौका ही नहीं दिया, तो हम में वो गट्स भी नहीं आता कि हम ये सोचें कि नहीं भाई, इफ़ हम कुछ सोच के कर रहे हैं देन वो राइट होगा। वी थिंक कि हाँ, हम तो सोच ही नहीं सकते, हम ऑब्वियसली इनको जाके पूछेंगे, ये हमको करेक्ट आंसर देगा या करेक्ट सोल्यूशन देगा। जस्ट स्टॉप डूइंग दैट। कुछ प्रॉब्लम है, कुछ हेल्प चाहिए, यू think you try to generate a solution on your own self, you try to tackle things on your own self, and that's how you learn, that's how you grow. And if you constantly asking for help या constantly आप किसी से ये ले रहे हो, validation ले रहे हो, I feel right now, once I was a person who used to continuously take validation, but now I completely hate validations. I feel, why do we have to ask somebody else if we are doing right, if we have chosen right thing or whatever it is? क्यों लेना ही क्यों है? खुद को उतना समझो कि तुमको खुद को लगे कि नहीं भाई, मैंने जो चूज़ किया है, मैंने जो सोचा है, मैं जो कर रही हूँ, मैंने जो बनाया, मैंने जो भी लिखा, जो भी वॉट एवर इट इज़, सही किया है। नहीं किया तो नहीं किया। इन जनरल आई एम सेइंग, नॉट जस्ट फॉर कंटेंट क्रिएशन या वट एवर, कि ट्राई टू थिंक एंड डू थिंग्स ऑन योर ओन, अवॉइड asking for validation. It's not just for content creation. But मेरा एग्जाम्पल थोड़ा वैसा है, आई थॉट ऑफ क्लियरिंग, ताकि किसी को ये ना लगे कि हाँ, ये कंटेंट क्रिएशन के बेसिस पे बोल रही है। सो मैं एग्जाम्पल के तौर पे ये देना चाहूँगी कि समझो मैंने एक वीडियो बनाई है, ओके, एंड मैंने वो वीडियो, वेदर इट कैन बी फॉर यूट्यूब और फॉर इंस्टाग्राम, मतलब इंस्टाग्राम की रील या फिर यूट्यूब की कोई वीडियो, दोनों में से कोई भी आप कंसिडर करो कि मैंने बनाया, एंड देन there is one group of people, or just consider there is one person and on the other hand there is another person. okay, मैंने एक पर्सन को वीडियो दिखाई एंड उन्होंने बहुत ऐसे तारीफ़ की कि यार बहुत अच्छा बनाया तूने, तो बहुत मेहनत की है, बहुत मस्त लग रहा है, एंड यू हैव डन वेरी वेल इन दिस वीडियो, तुझ में तो बहुत इंप्रूवमेंट दिख रहा है, एक्स वाई जेड। उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें बोली। बट ऑन दी अदर हैंड दिस साइड वाले पर्सन को मैंने वो वीडियो दिखाया, सो दे फेल्ट कि नहीं यार, दिस वीडियो फील्स ऑफ, it isn't that great, you could have done better, it is not that nice, मतलब all the negative things they have said, but आई एम नॉट कंसिडरिंग दैट पर्सन एज अ रॉन्ग पर्सन। मैं बस बता रही हूँ कि उन्होंने थोड़े नेगेटिव वो बोले कि नहीं, तुझे दूसरी बार ट्राई करना चाहिए, इट्स नॉट गुड, लोगों को पसंद नहीं आएगा, इट वोंट वर्क, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, दैट्स हाउ। एंड देन मैंने अब दोनों POV सुन लिए, ठीक है। अब मुझे अगर खुद को लग भी रहा होगा कि नहीं यार, ये वीडियो बहुत अच्छी बनी, मैंने बहुत मेहनत की है, बट जस्ट बिकॉज वो नेगेटिव पर्सन है, ऑब्वियसली ये बात हर कोई एग्री करेगा जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, कि जितने जल्दी हम पॉजिटिव चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं, उससे ज़्यादा जल्दी हम नेगेटिव चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब किसी ने कुछ पॉजिटिव चीज़ बोली, एटलीस्ट इन माई केस मैं बताती हूँ कि किसी ने कुछ पॉजिटिव चीज़ बोली, आई विल टेक इट, बट अगर किसी ने नेगेटिव चीज़ बोली, वो मुझे तुरंत हिट हो जाएगी, मुझे वो याद रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक कि नहीं भाई, इसने ऐसा बोला, वैसा बोला। सो इफ़ अब मैंने वीडियो बताया 2 लोगों को, पॉजिटिव वाला भी मुझे आया, नेगेटिव वाला भी, बट मैं क्या पकड़ के बैठ गई, नेगेटिव वाला। एंड वो नेगेटिव वाले थॉट्स या क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स की वजह से मैंने बंद कर दिया, मतलब मैंने डाला ही नहीं वो वीडियो कहीं पर। बट थिंक, इफ़ मैंने वो वीडियो डाल दी एंड देन देयर आर ग्रुप ऑफ पीपल हु एक्चुअली लाइक्ड इट, that's what I want to explain, if you guys understood with the example. मेरा in short कहने का मतलब ये है, आप कोई चीज़ करो, आप अपने मन से करो ना। ऐसे बहुत लोग होंगे जिनको शायद ना पसंद आए, बट ऐसे भी लोग होंगे जिनको पसंद आएगा। एंड आई फील इन दिस लाइफ, आप जितना सेल्फ वो करोगे ना, मतलब जितना खुद का रियल सेल्फ दिखाओगे, उतना लोग आपको पसंद करेंगे, उतना लोग आपको जानेंगे। बट जितना आप किसी और के वैलिडेशन से या किसी और के ओपिनियन से आप खुद को बिल्डअप करोगे ना, यू वोंट हैव योर सेल्फ वर्थ, लाइक आपका कुछ भी रियल नहीं होगा, इट्स ऑल स्टोलन फ्रॉम हियर एंड देयर एंड हियर एंड देयर। तो इन दैट केस यू विल लूज़ योर ओन सेल्फ, योर ओन आप खुद को ही कम समझने लगोगे। एंड ऑब्वियसली आई विल टॉक ऑन दैट ऑल्सो, बट इन अनदर वीडियो. Right now I just the motive behind this video is, see, hearing, taking advices aren't wrong, advices at times are very much needed, but I think that चीज़ों को गैस करके उन्हें रखना, बट ये पता होना कि कब कौन सी चीज़ को अप्लाई करना है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द अदर थिंग इज़ कि कभी कभी हम किसी अलग पर्सपेक्टिव से कोई चीज़ सोचते और करते हैं, बट अदर पीपल माइट नॉट अंडरस्टैंड दैट पर्सपेक्टिव, एंड उस वजह से थोड़े क्लैशेस हो सकते हैं, बट नॉट नेसेसरी दैट एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड। अभी किसी पर्सन ने मुझे कोई चीज़ कही विच आई डेंट लाइक, मे बी उनका कुछ अच्छा पर्सपेक्टिव होगा कहने का, बट आई टुक इट इन अनदर वे। सो इफ़ वी आर डूइंग समथिंग एंड सामने वाला हमको ऐसे बोले कि तूने ऐसे किया, वैसे किया, एनीथिंग इन दैट वे, तो हम सोचेंगे कि नहीं यार, इस पर्सन ने तो सही बोला, बट क्या पता उसको हमारा पर्सपेक्टिव ही समझना है कि हमने किस पर्सपेक्टिव से वो चीज़ की है, बनाई है या बोली है, वट एवर। सो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू टेल यू गाइज कि try to hear
योर ओन सेल्फ, मतलब खुद की बातों को ज़्यादा सुनने की कोशिश करो, खुद की चीज़ों को ज़्यादा समझने की कोशिश करो और खुद को ज़्यादा वर्थ दो, खुद को उतना केपेबल समझो कि यू कैन मेक डिसीजंस, यू कैन डू थिंग्स, यू आर डूइंग ग्रेट एंड यू डोंट रियली एक्चुअली नीड पीपल टू हेल्प you make choices. At times there are some situations where you genuinely need help. Okay, in that cases it's okay, but if मुझ जैसे मेरे जैसे मैं पहले थी, earlier how I was, if वैसे कुछ लोग हैं, तो guys I feel as I've experienced it कि थोड़ा कम से कम हेल्प लेना चाहिए, कम से कम हमको वैलिडेशन मांगना चाहिए एंड खुद को एक चांस तो देख के देखो भाई, क्या पता तुमको ऐसा फील हो कि भाई हम खुद एक बहुत अच्छे इंसान हैं, हम खुद चीज़ें बहुत अच्छे से टैकल कर सकते हैं, हम खुद अच्छे चॉइसेस ले सकते हैं, हम खुद बहुत क्रिएटिव है, खुद बहुत स्मार्ट है, बहुत अच्छे हैं. सो इंस्टेड ऑफ गिविंग अदर पीपल चांसेस, अपॉर्चुनिटीज़, और एल्स आई कैन से कि खुद से किसी और को अपनी लाइफ का की देने की जगह खुद को देखे देखो, खुद यूज़ करके देखो, खुद कुछ करके देखो, क्या पता यू वुड थिंक कि भाई नहीं यार, आई हैव डन इट बेटर, आई हैव डन इट इन अ बेटर वे. So that's all I wanted to say, that take your own stand for yourself and never underestimate yourself. If आप कुछ करना चाहते हो, if आपको कोई चीज़ पसंद है, it is meant for you and that's the reason you are doing it, you like it. So not necessary कि आप हर किसी की बात सुनकर वो करो, क्या बोलते हैं, अपना डिसीजन, अपने चॉइसेस बदलो. Do the things you like, do the things you love and rest. I will say कि लोग अगर कुछ खुद से एडवाइस देते हैं, डोंट डिसरिस्पेक्ट देम, ऑब्वियसली उनकी बात सुनो, बट देन डोंट हाँ बोला गया है मुझे तो मुझे वही करना, वैसा नहीं करो. यू कैन hear things and then at the end it's your choice that you have to do things on your own, like खुद के हिसाब से करने हैं, उनका सुन के करना है, वो तो आपका डिसीजन है ना, कोई प्रेशर नहीं है भी तो भी आपको वो प्रेशर को दूर करना है कि नहीं भाई, आई वांट टू डू दैट थिंग इन दिस वे, सो आई विल डू इट. उन्होंने जो मुझे बोला वो सही बोला, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड और आई डोंट फील दैट इट इज़ राइट. तो that's all I wanted to. Our life, our mistakes, we learn from mistakes, we grow, we understand. So all I wanted to say is give yourself a chance and let your own self see how capable and how great person you are. So I hope you guys liked this video and it would be helpful for you guys, to those who are stuck and to those who agree to me. Go like, share and comment, and don't forget to subscribe to my channel if you haven't, and I'll bring another video soon. There is a story time video coming on the way and I can't assure कि मैं वो कब post करूँगी, but as soon as I get the time to shoot and post it, I'll do it that quickly and I'll meet you next time. Until then, bye bye.